آج تو آپ کا استعداد ہے، آپ جا رہے ہیں، لیکن شاید مہینے 2 کے بعد آپ ایسے تھک جاؤ گے کہ اپنے 2 بھی چھوٹ جائیں گے۔ انسان کے خود بشری تقاضے ہوتے ہیں اور کئی بات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ 2 گز مقرر کرو، اپنا مکانی اور بیرونی، باقی اگر آپ کے پاس ساتھی زیادہ ہیں تو ساتھی کو ڈیوائڈ کرو، ایک ہی آدمی 2 آدمی ہر گشت میں روزانہ مت جائے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خرگوش کی طرح نہیں بلکہ کچو کی چال چلنا۔ تو اللہ پاک کو فکر دے کہ ہم روزانہ کی محنت کریں، لیکن اس کو گشتوں کا نام نہ دے کہ بھائی ہم ادھر 4 گشت کرتے ہیں، 5 گشت کرتا ہے، 2 گشت کرتے ہیں، بلکہ ملاقات، خصوصی ملاقات کی لاج کی، خلاص ماشاء اللہ ہو گیا ملاقات۔ وہ گاشت کا مطلب اصل میں وہ اس ٹائم یہ ہے ملاقات ہی ہے، ہاں، کیونکہ یہ جو کورونا کے ٹائم میں ایسا ہی چلتا تھا، ملاقات کا حساب سے ہوتا اس تھا۔ وقت ہم کیا کرتے تھے، ہر مسجد میں پہنچتے تھے، محرم کے بعد ادھر گشت کرتے تھے، ہر مسجد میں پہنچتے تھے گشت۔ پھر امیر صاحب نے منع کیا، انہوں نے بولا بھائی ترتیب ایسے نہیں، ترتیب یہ ہے، آپ لوگ ترتیب پر چلو گے تو تحیات چلو گے، اور اگر بغیر ترتیب کو چلو گے تو کچھ دن چل کر تک کے گر جاؤ گے، بیٹھ جاؤ گے۔ اللہ معاف فرمائے۔ فی الحال وہ تو کورونا کا موسم میں کیا، ابھی تو کورونا کیا۔ ابھی ہمارے غربیہ کے احوال تو ماشاءاللہ وہی غریبی والی بات ہے کہ کچھ بھی نہیں، ہمارے ساتھیوں کا پتہ نہیں ہے کہ کون کہاں۔ ہمارے ایک مربی ہیں، کدھر گیا ادھر ہے، اور تو ماشاءاللہ بیرون کے بھی سفر کر کے آ گیا، لیکن ہم لوگوں کے اوپر ہاتھ کا سایہ نہیں رکھتے کہ بھائی دھوپ سے بچو۔ وہاں پر پہنچتا ہے ماشاءاللہ بڑی محنت کے ساتھ بھاگ دوڑ کرتا ہے، بیچارے چھٹی کے بعد نہیں، چھٹی کے ڈیوٹی کے دوران بھی بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن ہمیں تو چھوڑ کے نہیں چھوڑا نا، ہم تو چوزے ہیں، وہ چوہے کا وہ اس طرح نہیں ہوتا، کیا بولتے ہیں مرغی کے بچے، اگر کوئی اکٹھا کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ سانپ بھی کاٹیں گے اور شیر کیا بولتے ہیں وہ شاہین، وہ بھی ہم کو اٹھا کے دیں گے۔ ہماری مسجد میں الحمدللہ کورونا کے دوران بھی نہ تعلیم بند ہے نہ گشت بند، اس وقت بھی یہ چلتا۔ میں چھٹی گیا تھا تبھی ادھر سے میں حوالے تھا، تو ساتھی بولتے کہ الحمدللہ ہمارا گشت بھی ہو رہا تعلیم، لیکن اس کے بعد جب بھی میں بھی آیا ہوں، پھر بھی چھٹی گیا، واپس بھی آیا، لیکن بیرونی گشت بھی نہیں۔ اور ہمارے غربیہ والوں کا ماہانہ مشورہ تو چھوڑو، ہفتہ واری مشورہ بھی نہیں۔ 1-2 دفعہ میں ادھر مقرر کیا کیتکو میں مولانا جعفر صاحب کے ادھر، میں 2 دفعہ آیا، لیکن ایک ساتھی بھی نہیں ہوتا، پھر نماز پڑھ کے واپس سبحان اللہ کر کے چلے گئے۔ تو یہ ہے کہ بھائی ہمارے غربیہ کے احوال، اس کے لیے تھوڑا دعا کریں، نہ مشورہ ہے، ماہانہ تو چھوڑو، ہفتہ واری بھی نہیں ہے، ماہانہ بھی نہیں ہے، اور نہ مسجدوں کے احوال ہیں۔ ابھی کچھ غربیہ والے 4-5 ساتھی بیٹھے ہوں گے، ایک کو بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمارے غربیہ میں کتنے مساجدوں میں کام نہیں، مجھے بھی نہیں معلوم، دوسروں کو بھی نہیں معلوم، کتنے ہمارے پرانے ساتھی جیسے بھائی نے فرمایا جو پہلے تھے، آج ایک کون کہاں ہے۔ عبد المالک صاحب کون ہے آپ کے ہمارے آپ لوگ کے یہاں جو کل مساجد کی تعداد 15 ہے، اور اس وقت کے اعتبار سے کل بعض اعمال والی مساجد 6 ہیں، اور اس میں کل خروج کی اوسط جو ہے 1 ہے، اور کل جماعت کی نصرت وغیرہ جو استقبال آپ لوگ کرتے ہیں وہ 4 جگہ کرتے ہیں۔ یہ احوال پچھلے مشورے میں دیا گیا تھا آپ لوگوں کی طرف سے، پاسمنڈا کا، یہ اس وقت کا یعنی تازہ صورت حال ہے۔ بیچ میں 4 ماہ والے کتنے ہیں کوئی خبر نہیں، چلے والے کتنے ہیں کوئی خبر نہیں، اور باقی جو بہت ساری چیزیں ہیں، ماہانہ مشورہ جسے آپ نے بتایا نہیں ہو رہا ہے، ہفتہ واری مشورہ، تو یہ مکمل 2-3 یعنی 2 دفعہ سر ہم چیزیں ہیں 2 دفعہ دیکھ کیا جی ادھر کیتکو میں، کیونکہ سینٹر ہے دونوں سائڈوں میں، لیکن رسول اللہ ماشاء اللہ ساتھی۔ اچھا، تو ابھی یہ کتنا یہ جو ابھی تو آپ لوگ کا تو ساتھی موجود ہے، ان سے رائے تو لکھی، اس کو کچھ تو دیکھ کر لے تو بہتر ہوگا۔ آپ لوگ رائے لکھیں، ابھی سے تو ہے نا، پہلے باقی جیسا غربیہ وہ تو باقی جگہ ہاں احوال لے لے، پھر اس کے بارے میں سوچا جائے گا۔ بسم اللہ، ہاں جی رائٹ ڈیوٹی وغیرہ بھی سچ سب موٹی آ جائیں، بات جو مقصد ہے جی۔ مختصر میں رائٹ سائڈ کا یہ حال ہے کہ چلنے والے صرف 40 ہیں، اور اس میں جو یعنی بالکل حرکت میں اس کے آدھے 20، 70 کے قریب جو ہے، معاف کرنا 4 ماہ والے جو ہے 40 ہیں، اور حرکت میں آدھے ہیں اس کے یعنی 20 کے قریب، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں 70 کے قریب جو ہے چلے والے ہیں،
اور اس کا آدھا جو ہے حرکت میں. ہماری قریب 53 مسجد ہے، لیکن ہفتہ واری مشورے میں ہم لوگ صرف یا روزانہ یعنی ہفتے میں جو حرکت میں ہے وہ قریب کبھی 19 سے 22 مسجد ہم لوگ جوڑ رہے ہیں. یہ ہماری کمزوری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 5 اعمال والی مساجد 15 ہے ماشاءاللہ، جو عموماً محنت کر رہی ہے. قریب جو ہے بعض اعمال والی صرف 30 مسجدیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کل مہینے کی خروج ہماری ایک اوسط ہے، کبھی 12 ہوتی ہے، کبھی 15 کی اس کے بیچ میں جاتی ہے جماعتیں اس طریقے سے. اور آئندہ ہم نے عزائم بھی کیا ہے کہ ہم ہمارے ہر ہفتے کے جو مشورہ ہوتا ہے اس میں ہم لوگ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ چلے 4 ماہ یہ ہمارا ایک امور ہے خاص طور پر، اور 4 ماہ پیدل کے لائن سے یہ ہم لوگ بات لے کر آتے ہیں کہ جیسے کہ 40 ساتھی 4 ماہ والے یا چلے والے 70 ساتھی ہیں، تو یہ ان کے کیا احوال ہے، یہ سالانہ اپنا جو ہے وقت کیسے گزار رہے ہیں. کیا انہوں نے اس طریقے سے عزائم کیا ہے کہ بھائی میں جنوری میں میرا وقت میں انشاءاللہ لگانے جا رہا ہوں، جو یہاں کی ترتیب سے جیسی اجازت ہے، ایک حصہ یہاں ایک حصہ وطن میں اور ایک حصہ جو ہے اپنی ترتیب پر. تو اس طریقے سے ہمارے ہفتہ واری مشورے میں احوال لیے جاتے ہیں. ماہانہ مشورہ جو ہے بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں مکمل کارگزاری لی جاتی ہے. عصر سے مغرب کے درمیان اگر مکمل ہو گیا قریب 2.5 گھنٹے کا وقفہ رہتا ہے، اس میں مغرب تک قابو میں آ جاتا ہے. اگر ہم نے کچھ تھوڑا سا اونچا سوچا ہے کہ ایکسٹرا امور ہے تو پھر اس کو عشاء تک لیتے ہیں، پھر وہ اکرام والا معاملہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس وقت کے اعتبار سے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کمزور ہیں تو کل کو ہم رہیں یا نہیں رہیں، کام چلنا چاہیے. ہماری یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھی جو ہے نئے آ رہے ہیں، تو نئے ہیں وہ نہیں، جس کا وقت لگ گیا وہ سمجھو پرانا ہوا، چاہے وہ 1 دن کیوں نہ لگایا ہو، چاہے 3 دن کیوں نہ لگایا ہو. اس وقت کے اعتبار سے میں میری ذات سے قربانی کو نہیں بڑھا رہا. مثال کے طور پر اگر اشارہ دیا گیا ہے بڑوں کی طرف سے کہ بھائی آپ کو آدھے گھنٹے دینا ہے کم سے کم روزانہ، یہ ایک ادنا درجے کی بات بتا رہا ہوں میں. ہمارا تو اس میں ادنا درجہ یہ ہے کہ بھائی 2.5 گھنٹہ ہے. قرآنوں کا یہ حال ہے، میں میری بات کروں میں 2.5 گھنٹہ نہیں دے پا رہا ہوں. اشارہ یہ ہے کہ بھائی آپ کو جو ہے 8 گھنٹے تک آنا ہے. اور یہ بات بھی آئی ہے جو اپنے کام سے ریٹائر ہو چکے ہیں، کون سے دنیاوی لائن سے، ان کو 16 گھنٹے کی ترغیب مل رہی ہے. ابھی اس وقت کا تازہ صورت حال ہے، 16 گھنٹے وہ کیسے آوے. تو یہ تو بہت اعلیٰ درجہ ہو گیا کہ میں جس سطح پر ہوں کیا میں اس سطح پر باقی ہوں یا میں اس سے نیچے آ چکا ہوں. یہ سب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آدمی روزانہ سونے سے پہلے اس کا جائزہ لے. میں میری ذات سے جائزہ لوں تو جا کے دوسرے دن میں سوچ سکتا ہوں کہ بھائی میں کیا کروں گا آگے. اور پھر مختصر میں یہ ماشاءاللہ کہ ہمارے پاس یعنی فیروز بھائی ہے اور ہمارے مولانا عبدالحسیب صاحب ہے ماشاءاللہ. یہ عموماً جو کچرا مارکیٹ کی طرف جو لاسٹ والا حصہ ہے، اور عموماً فکر کے ساتھ میں جو ہے وہ اتنا بنجر علاقہ تھا، اللہ کے فضل سے مولانا کے آنے کے بعد کافی چیز حرکت میں آئی. وہاں کے ساتھی بیدار ہوئے ہیں. جہاں ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہاں پر کام ہو رہا ہے، اللہ نے وہاں پہ بھی کام کھڑا کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی فکر ہوتی ہے جو ہر میدان میں تیار رہتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے مولانا اللہ نظر بد سے بچاوے، مولانا میں اسی فکر کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارا اسلام الدین بھائی ہے کہ بھائی پرانا ساتھی جو سطح پر ہے وہ نیچے آ رہا ہے کہ بھائی اس کو جو بیدار کرتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہر ایک دوسرے ساتھی کو پکڑ کر جو ہلاتا ہے کہ بھائی آپ کہاں پر ہو. ہمارے آپس میں جو ہے اس بات کی یہ ہر ہفتے والی مشورے میں ہماری بات آتی ہے کہ بھائی ہمارا 4 ماہ والا ساتھی اور چلے والا ساتھی کو ایک بار پکڑ کے، جیسے ہم نے 5 منطقے مل کر اس بار جوڑا ہے نا، ایسے ہی ہم لوگ ہمارے منطقے میں بھی فکر کرتے ہیں ہفتہ واری میں یا ماہانہ میں کہ بھائی 4 ماہ والے ساتھی یا چلے والے ساتھی، پرانے جو 3 دن لگے جو حرکت میں جو 4 ماہ والے ساتھی سے بھی اچھا کام کر رہے ہیں، یہ کیسے جو ہے یہ پونجی ہے، یہ کیسے جو ہے چھوٹ نہ جاوے. تو یہ مختصر اور کوئی چیز بتانا جو رہ گیا بتا دیں انشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے جی، سب کو بتایا. لیفٹ سائڈ کے اندر تو الحمدللہ جو صورت حال ہے اس میں تو اکثر تو ساتھی جو ہے الحمدللہ جمے ہوئے ہیں. آپ لوگ کا جو اصل جوڑنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں دعوت و تبلیغ کا کس رخ پر ہے، ملنے کا بیٹھانے کا مقصد یہی تھا.
हर एक इंसान कुरान पढ़ते पढ़ते हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, वो कुरान से पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वो भी देखना है। कुरान तो अल्लाह के लिए है, लेकिन अल्फाज किसके लिए, अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं। काम तो हर इंसान अल्लाह के लिए कर रहा है, कोई गैरुल्लाह के थोड़ा करे। सही है ना, अल्लाह के लिए करना, लेकिन किस रुख पर है, काम का रुख क्या है। जैसे हमारे यहाँ से बैरून जमात निकल गई, किस रुख पे निकली, रुख कहाँ से लाए, किसकी इताअत पर रुख चल काम हो रहा है, ये असल गौर फिक्र करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ लेफ्ट साइड में रुख की तरतीब पर है अल्हम्दुलिल्लाह। उसी एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा महीना मशवरा भी है, हफ्ते का जोड़ मशवरा भी है, 2 जगह पे हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते का जो मशवरा है 2019 से लेकर अभी तक कभी किसी दिन बंद नहीं हुआ। मस्जिद में जगह नहीं मिली तो हमने गार्डन में बैठ के मशवरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो है चलाओ, जो चल रही है बातें जो से बताए हमारे अख्तर भाई ने, काम की सतह निजामुद्दीन से इतनी बढ़ गई है, अगर वो सतह आपको पास पेश कर दे तो बोलेंगे तो अब कैसा काम लेकर आया, अपना काम करवा रहा है। जैसे बोले 16 घंटे पे आओ, अब किसी के क्या बोलेगा, मस्जिद को 24 घंटा आबाद करो, ये है काम की सतह तो बहुत बढ़ गया। करने वाले अल्लाह पाक कर रहे हैं। 80% मस्जिद कलकत्ता के अंदर 24 घंटे की आबाद, एक एक मस्जिद से 4 महीने की 2 जमात निकलती है। अच्छा, बाद जगह में तो चिल्ले की तश्कील ही बंद हो गई इंडिया में, क्योंकि हजरत का जो ऐलान है कि हर साल 4 महीने पैदल लगाओ, सवारी वो इख्तियार करेगा जिसका सेहत से मजबूर है, सेहत से जो मजबूर है वो सवारी इख्तियार करे, पैदल चलो चलकर 8 घंटे से बता रहे 16 घंटे, कितनी मेहनत हो रही है, कर रहे हैं। तो इसीलिए हमको आप लोग को असल जो जोड़ना था, भाई जो काम हो रही है तो किस रुख पे हो रही है, रुख के साथ अगर काम करेंगे ताब के साथ करेंगे। अगर इजाज़त हो तो अभी 3 महीने कारगुजारी अल्ताफ़ भाई सुनाए थे तो मैं सुना दूँ। अल्ताफ़ इंजीनियर जो है वो अभी चिल्ले के लिए गए थे, तो उन्होंने जो कारगुजारी बताई है ये 3 महीने के अंदर की कारगुजारी है। मुख्तसर में है, इस साल के लिए जो निकले हुए उलमा है 26 उलमा निकले थे। हाँ, वो तय हुए थे कुलीन के मशवरे में थे बाबू जी। दूसरा साल जो दूसरा साल के लिए निकले हैं वो 208 उलमा निकले हुए हैं। उनमें से जो है एक जमात ऐसी है कि एक घर से 3 भाई 3 आलिम निकले हुए हैं। और जो है 5 महीने की जो बहरून जमात है, 3 महीने के अंदर में 50 जमात निकली है। और जो है 4 महीना वाला जो जमात है वो अंदरून के लिए वो 5000 जमात है, 4 महीने की जमात। इसी तरह 2 महीना मस्तूरात जो बहरून के लिए है वो 28 जमात है। चिल्ले की मस्तूरात की जमात जो है वो 800 जमात निकली है ये 3 महीने के अंदर में। इसी तरह जो साथी से अख्तर भाई ने बताया कि जो साथी रिटायर हो गए दुनिया के काम से, जो मिलिट्री हो गए और जो कोई जो सरकारी काम से जो भी हो, जो काम से रिटायर हो गए वो रोज़ाना अपनी मस्जिद को 16 घंटा दें। उसी तरह जो साथी जो काम जो 4 महीने वाले साथी हैं, जो जिम्मे जो दावत वाले साथी है, उसके लिए रोज़ाना 8 घंटा मस्जिद को दिया जाए। वो आखिर दर्जा ये है कि वो कम से कम 2.5 घंटा तो ज़रूर दें। उसी तरह मस्तूरात के लिए बताया, जो मस्तूरात जहाँ नमाज पढ़ती है रोज़ाना के एतबार से, तो वह भी अपने मुसल्ला पे 2.5 घंटा गुजारे और अपने बच्चों को वहाँ तालीम में शिरकत करें, मुज़ाकरा में शिरकत करें, और चाय के बहाने नाश्ते के बहाने अपने पड़ोसी औरतों को जोड़े वहाँ पे 2-4 औरत को, और वहाँ दावत चलाएं, बल्कि उस मुसल्ले को कम से कम 2.5 घंटा रोज़ाना आबाद करें। तो ये इस बात से बात आई थी अलहमदिल्ला, हमने महता भाई को पिछले महीने में बताया भाई, कम से कम हमारे 4 माह वाले जो साथी, इसमें हम सब कमज़ोर हैं, हमारा मस्जिद अलहमदिल्ला कमज़ोर है कि 2.5 घंटे भी हम लोग नहीं दे रहे, 2.5 घंटे भी डेली जो रोज़ाना दिए जाते हैं। ये तो तरतीब पुरानी है,
सबको ये आप लोग पुराने सबको खबर है कि रोज़ाना कम से कम एक साथी जो 4 माह वाले जो दावत का दावत के साथी हैं तो 2.5 घंटे तो मस्जिद को दे अल्लाह के घर पर भाई। इस बात से हम तो थोड़ा भी उलझे हुए हैं, तो हमने महताब भाई को मशवरा दिया था इस बात से लोगों को जोड़ना है। बात भी मशवरे हमारे रोजाना 1 हफ्ता चली भी बात, लेकिन उस पर आप तक काबू नहीं आया। बताओ भाई महताब भाई। अभी ड्यूटी साथी का आगे पीछे है, तरतीब भी नहीं हो पा रही। नाइट हो गया साथियों का। इसको किस अंदाज में लिया जाए? जैसे अभी ये जो पुरानों का मजमा है हमारे कतर के एतबार से सब पुराने, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 10 साल से, 32 साल, कोई 5 साल से मोटा मोटा। तो सुबह से लेके यानी फजर से लेके इशा तक मुकम्मल नहीं कि भाई एक ही टाइम पे 2.5 घंटा देंगे। तो इसको अपने वक्त को अगर बांट लिया आदमी, मेरी ऐसी राय है, अपने वक्त को बांट ले, जहाँ पर खाली है वो अपने, जैसे कहा ना कि भाई सोने से पहले अपना मुहासिबा करे, आज मैंने कितना घंटा वक्त दिया, मेरी राय है। बाकी नहीं जैसे बता रहे हैं आनंद भाई कि इस तस्बीह अगर 2.5 घंटे इंसान मुकम्मल दे दे तो इंशाअल्लाह इनकी तस्बीह ना बाकी नहीं रहेगी। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बात सही है। ये हमारा जो सनैया का जो हालत है, ड्यूटी फ्यूटी, ये आज के काम बात नहीं, बात ये 30 साल पहले से ये बात है भाई हमारा ड्यूटी ऐसा है, ड्यूटी ऐसा है। तो ये जो हमेशा बोल रहा है ना 2.5 घंटा का जो ये तो पुराना तरतीब है, लेकिन 2.5 घंटा को सामने रख के हम लोग कम से कम तो एक टाइम मुकर्रर करें। अगर ऐसा का बात भी हो आधा घंटा के लिए हो, सामने तो टारगेट 2.5 घंटा है, लेकिन आधा घंटा भी हम लोग यह करें, पक्का करें, फिर भी तो आस्ते आस्ते इंशाल्लाह काम बन जाएगा। इसके लिए भाई जो अभी हमारा जो मनफिकिर है, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इधर ऐसा साथी है जो 2.5 घंटा क्यों बल्कि आस्ते आस्ते 3 घंटा भी दे रहा था, लेकिन ये कोरोना में आगे पीछे हो गया। अभी ये जो मजमा अभी जमा हुआ है, सब साथी पक्का नियत करे, इरादा करे जो इंशाअल्लाह हम 2.5 घंटा को सामने रख के कम से कम हर दिन आधा घंटा हो, फिर हम इंशाअल्लाह मस्जिद के ऊपर जाएंगे। तो इंशाअल्लाह कौन पास हम साथी तैयार है इंशाअल्लाह। ऐशा की बात, क्योंकि हमारा पसंद है कि अक्सर यह ऐशा की बात ही होता है, हम इंशाअल्लाह आधा घंटा इंशाअल्लाह मस्जिद देंगे। और ये आधा घंटा में क्या करना है हम सबको तो पता है, मुलाकात है, अगर कोई बीमार फुर्सी है और किसी के साथ अगर कोई खास मरकज़ से कोई तगाजा आ गया, उसका बारे में भी बात कर सकता है। इसके लिए इंशाअल्लाह हम लोग अभी जो बैठा हुआ है, हमारा बैठने का मकसद ये है कि हम जो ये 2.5 घंटा का नाम से आधा घंटा तो इंशाअल्लाह ज़रूर देंगे, ठीक है ना इंशाअल्लाह। और बाकी जो हमारा मुकामी गेस्ट है, बैरूनी गेस्ट है, वो तो इंशाअल्लाह हम अभी तो हुकूमत का तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे वर्कआउट किया, 15 आदमी 40 आदमी वो भी किया। तो इंशाअल्लाह हम अपना जो मुकामी गेस्ट है, बैरूनी गेस्ट है, और हकीमुद्दीन भाई ने जो बोला था हम तो और भी 3-4 मस्जिद में जाता था, तो कोरोना का टाइम में कम बेश होगा, लेकिन अभी हम लोग पहले तरतीब में आ जाए जो अपना मस्जिद का मुकामी गेस्ट जो है तो करे, और बैरूनी हम एक ही करें हैं। अगर हमारा साथी ज़्यादा हो फिर हम तकसीम कर सकते, बोलते हैं 10 साथी से अगर ज़्यादा हो फिर उसी से तकसीम करके दूसरा बैरूनी को कर सकते हैं। तो इसके लिए ये अभी हमारा जो सारे का ये जमा होने का फिक्र ये लो, जो क्योंकि हम लोग जो अज़ाइम करेगा अल्लाह ताला उनमें इंशाअल्लाह बरकत दे। हम लोग इंशाअल्लाह पक्का नियत करें कि हम हमारा जान माल वक्त को अल्लाह के लिए, अल्लाह का दीन अलाए कलमतुल्लाह, अल्लाह यानी कलमा का आवाज़ बुलंद हो जाए, इसके लिए इंशाअल्लाह हम 2.5 घंटा को सामने रख के हम इंशाअल्लाह अभी से इंशाअल्लाह पीछे जो हो गया, अभी से इंशाअल्लाह हम कम से कम आधा घंटा तो इंशाअल्लाह दूंगा, ठीक है ना इंशाअल्लाह। और हम हमारा बैरूनी और मुकामी जो इंशाअल्लाह काम चल रहा है, और इसके साथ साथ वो जो हमारा
घर का तालीम, घर का मकसद कतर का घर नहीं है बल्कि हमारा मुल्क का घर जो है उसका भी हम खबरगिरी करें। उसमें भी हम हमारा घर का तालीम, हमारा बीवी बच्चा का तरबियत, ये मैंने जो बताया वो या मसला का जो बात बताया, असल मसला मतलब यह है कि हमारा औरत भी इसी काम के साथ जुड़ा हुआ। तो ये इंशाल्लाह सब हम जैसे इंशाल्लाह तरकीब देगा। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमू शीमू है, हम कोई किसी को दिखा रहा है इधर से मनी गास्ट का अदब मनी बयान कर रहा है, मनी ईमू का इतना यह हो गया। लेकिन ये ईमू बदमाश भी है, हमारा सारे वक्त को खा लिया, सारे वक्त 2.5 घंटा 3 घंटा। इसके लिए हमारा ये जो मनी मरकज यह में यह हुआ ना, ईद का जमात हुआ, मुफ्ती साहब ने मला बताया भाई दज्जाल का फितना से इंटरनेट का फितना और भी सख्त है। इसके लिए भाई साहब साथी ये आज के ये जो मशवरा है इसमें ये भी तय करो कि हम इंटरनेट का फितना से हमको बचना है। इंटरनेट का फितना बहुत मुश्किल है। कार्रवाई है इसमें हम उसमें मान लिया था जो कोरोना में बहुत सारे साथी जो पुराना जो है थोड़ा हमसे दूर हो गया, मतलब दूर नहीं हमसे नहीं जुड़ता है, उन लोगों से कैसे हमारा काम मुकम्मल लेके आएगा। तो इसके लिए इंशाल्लाह जो आमिर साहब जो बोला 2.5 घंटा मेहनत है भाई, इंशाल्लाह उस पर जो हमको जो वक्त पहले लगाए वाला साथी 3 दिन के लिए चिल्ले लगाए आश्रय के लिए, उस साथी से पहले इंशाल्लाह मुलाकात करके इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़ना है। ये हमारा अहम तकस है, ये हदफ जी कुछ कह रहे वो आखिरी वाली बात है। नहीं अब बोलो कुछ बोलना था। आप में गाड़ी निकल गई। साहब अभी जस्ट बैठे बैठे जहन में बात है, हर दावत का साथी खुसूसन या जो साथी मौजूद है अमूमन जो हमारे इतराफ़ में हमारे मुंतकिम है, एक तो मामलात की सफाई और अखलाक में दुरुस्त, ये 2 चीज़ मेरे अंदर मैं रोज़ाना जायज़ा लेता बहुत कम। आमाल के लाइन से आदमी तस्बीहात तिलावत सब कर लेगा, खुसूसन इस वक्त के एतबार से आदमी जो है दावत तबलीग के साथी को देखता है, लेकिन मामलात की सफाई अखलाक में दुरुस्ती ये 2 चीज़ नहीं पाई जाती, ये बहुत ज़रूरी है बेशक। और इस वजह से जो साथी करीब आने को है वो दूर होते जाते हैं। तो हर वो साथी इस बात की फ़िक्र करे, खुसूसन दावत वाला साथी, क्योंकि अगर मैंने अपने मामलात की सफाई, चाहे कोई भी मामलात में सारी चीज़ आ गई उसमें, उसे पूरा ख़ानदान ये वो सब आ गया उसमें, और हमारे अखलाक में दुरुस्ती नहीं आई तो बहुत बड़ा नुकसान है। मुझसे एक बात हाँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो वक्त लगाए हुए साथी हैं 4 माह, तो उसको ज़्यादा इज्जत देते हैं हम। जो 3 दिन वाले साथी हैं उसकी तरफ नज़र भी नहीं करते। तो जब वो उनको हम 3 दिन वालों को हमारे साथ रखेंगे, जोड़ेंगे, उसको आगे अज़मत के साथ हम लेंगे, तो वही फिर हमारा 4 महीना वाला बनेगा। तो जिस भी मुंतके में है, मस्जिद में है, मस्जिदवार जमात में गश्तों में जुड़ता है, तो उसके हम ख़ास ख्याल रखें, उनको भी हम साथ में जो है। अभी तो पुरानों को बुलाया गया, पुराने आते हैं, जोड़ होता है, लेकिन अब हमारे साथ जो नहीं जुड़ रहे हैं, हमारे गश्त में आज नहीं बैठे, हमारे मशवरे में नहीं बैठे, तालीम में, जो मस्जिद वार जमात में, तो हम उनको जोड़ने की फ़िक्र करें कि हमारे साथ जो है रोज़ाना 3 दिन वाला साथी जुड़ता रहे, और 4 महीने वाले को भी जोड़ने की फ़िक्र करना है। ठीक है। अमित साहब थोड़ा सा ये उसूल जो है ना बहुत सारे, जैसे निजामुद्दीन के उसूल, ककरेज के उसूल, रायबन के उसूल, अब्दुल वहाब साहब ने बताया 5 बात में तोड़ नहीं होगा। अब तो सब मालूम है, लेकिन सबक सुनाता हूँ। 5 बात में तोड़ नहीं होगा, मतलब साथी का इस्लाह का फिक्र में पड़ना नहीं। साथी का इस्लाह करना फ़र्ज़ है, लेकिन दिल तोड़ना हराम है। इसलिए 5 बात उन्होंने बताया। साथी का इस्लाह का फिक्र में पड़ना नहीं, उसूल में आने का फिक्र में पड़ना नहीं। साथी को इकराम करो, खिदमत करो, खुद उसूल में जमे रहो। बहुत सारे हमने अपना काट का मस्जिद पहले था ना, वो जो 17 नंबर नहीं हमारा 2 नंबर पहले अस्करी मस्जिद था, वहाँ से आज से बहुत पहले का बात कर रहा हूँ, 30 साल पहले का। वहाँ भी जब था, फिर हमारा दूसरा मस्जिद आया, नया मस्जिद। बहुत साथी हम देखा, हम पुराना मार्केट में अमित साहब का साथ 17-18 साल हम था। हम जितने आदमी को देखा जो किसी ने उसूल बोला ना, अल्लाह ने उसको निकाल दिया। वो उसूल को छोड़ो, साथी को
जोड़ो। ज़्यादा से ज़्यादा जो उसूल कर रहा है ना अल्लाह उनको, जैसे फ्रूट का अंदर कोई फ्रूट खराब होता है उसको क्या करते हैं, निकल देते हैं, उसी फ्रूट की वजह से सारे फ्रूट खराब होता है। इसलिए दोस्तों हम बहुत सारे को देखा लेकिन किसी को नहीं बोलने का, उसने बताया। लेकिन हमारा ये आदमन गुजर साथी से पैर पकड़ लेता हूँ, उसूल तो ठीक है, हमने अमित साहब से भी सुना जो पुराने का जोड़ में 4 दिन उसूल का बात करता है, आखिरी दिन बोलते हैं उसूल को तोड़ो, साथी को उसूल तो ठीक है, उसूल तो रखना है, उसूल मेरे लिए। नए साथी का उसूल बनेगा बोलते हो तुम्हारा उसूल लेकर तुम रहो, मैं तो घर में गया। जो आदमी हमारा से गया वो उसको पैर पकड़ेगा फिर आएगा नहीं। इसलिए दोस्तों उसूल जब यानी हम पाबंद होगा तो फिर वो उसूल में चलेगा। उसको तो अभी इकराम करना, क्या करना, हमारे साथी को इकराम करना, उसको खिदमत करना। ये नहीं कर रहा हूँ लेकिन उसूल बोलता हूँ। आदमन गुजर बहुत सारे हमारा मस्जिद में भी देखा साथी उसूल कर रहा है, उसूल बोल के हमारा जो ये ना जो बुजुर्ग आया वो साथी नहीं किया। हमने गाड़ी में था, सामने इस्तिकबाल में था, बहुत सारे 56 आदमी आए, वो 4 मीटर था नहीं था, हमारा अमित साहब था ना उधर, हम जो हरासा में था। लेकिन वो बहुत आदमी बोलता है भाई उसूल, जिसने उसूल बोला वो भी नहीं किया। ओ हमारे गुस्सा दी जाए मुश्किल नहीं, या कोई फर्ज तोड़ रहा है क्या, फर्ज नहीं तोड़ रहा है, कुछ साथी जाए बुजुर्गों की सोहबत में। लेकिन जो उसूल बोला हम देखा वो किया भी नहीं। इसलिए दोस्तों ठीक है, उसूल तो अपना जगह में है, लेकिन उसूल मेरे लिए जो पुराना साथी है, नए साथी को उसूल नहीं तोड़ोगे कैसे तोड़ेगा, उसूल बोलेगा वो तो घर में रहेगा। अल्लाह हमको तौफीक दे दे, साथी के साथ मोहब्बत हो। एक मीठास है, एक शहद है, केरला है, केरला कोई पसंद नहीं करता है, शहद बनना हम सबको, अल्लाह हमको तौफीक दे, सबको तौफीक दे। अच्छा हम गरबी वाला आप तो ये जो बोलता है नहीं है अभी तो मैंने उसूल को नहीं बताएगा, लेकिन इतना तो करोगे हमारा इंशाल्लाह सप्ताह वाली हफ्ता वाली माशाल्लाह इंशाल्लाह जमाने के लिए भाई गरबी वाले हाथ उठाए भाई, उनसे राय लेके अभी हमें सब मुकर्रर करो, एक जगह मुकर्रर करो, दिन भी मुकर्रर। अभी एक जगह मुकर्रर कर दो आप लोग का हफ्ता भर। हमें सब आप राय ले ले, मफ्तूह राय ले ले। अच्छा कारगुजारी को सुना रहा अब्दुल मलिक। एक बात है, अच्छा ज़्यादा नहीं है, 1 मिनट। हाँ, ये हम शानी में रहता था, तो अभी एक यमेनी है वो इमाम, वो क्या करता है हर टाइम असर की बात, मगरिब का बात बहुत लंबा दर्द देता है। अभी हमारा आमिर साहब बोलते हैं अभी हम लोग गश्त करता है लेकिन बयान नहीं होता है, उसको उधर बयान वो करता है, लंबा करता है, दर्स करता है, हाँ दर्ज करता है, हम लोग नहीं कर सकते। तो आमिर साहब ने तकरीबन 1-1.5 घंटा तक पूरा मशवरा साथियों से राय लिया। फिर बाद में तय हो गया, आमिर साहब ने तय किया, ये सब सारे साथी मुख्तलिफ राय दिया। फिर बाद में बोलते हैं ये कुछ हादिया लेकर उसके पास जाएगा, फिर उसको बताया। तो अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया, जब साथियों का दिल का अंदर ऐसा आज़म आया तो बोलते 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगो, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह हाल करेगा। तो फिर हम लोग जाने का बोला, आमिर साहब जो ये हादिया लेकर गया ना, उसका पहले उसका पास जाने का पहले वो बता रहा है आप लोग गश्त करता है, बयान कब करता है बयान कब करता है, बोलते हम लोग ऐसा फलाने दिन करते हैं, बोलते उसी दिन हमको बताओ, हम नहीं करेगा। सुभान इकराम का नियत किया, हम नहीं करेगा। तो उसको बताना कैसे है, तो जब सलाम फिराता है खड़ा होकर ऐलान करता है, उसको मालूम हो जाता है वो उस दिन नहीं करता है, बस हम लोग शुरू करते हैं। तो ये बात करने का मकसद ये है, अभी हमारा अंदर मेरा अंदर फिक्र नहीं है। अगर ऐसा फिक्र होता है तो ये गरबिया वाला ज़रूर आता है, ये फिक्र होता है, ये जमता है, लेकिन मेरा अंदर कभी नहीं। तो आप बोलते हैं आपका अंदर, वो बोलते हैं उसका अंदर, तो इसे अगर सारे अंदर करके तो आ जाओ फिर तो हो जाएगा। तो इसके लिए अभी ये जो सब मिल के अभी ये हो जाओ, अंदर करो। सबको कौन सा दिन पसंद है, नहीं वो अपना बैठ के मशवरा, अपना बैठ के मशवरा करो लोग। यहाँ पे वक्त हो गया, अभी वक्त हो गया। अभी ये बता दो, राय ले ले, या ये अलग बैठेंगे फिर आपके पास आके सुनाएंगे, इसका डबल टेप हो जाएगा। आप बताओ 5-6 साथी है, भाई तो कब इंशाल्लाह इकट्ठे हो जाए। उनका कौन सा दिन मुनासिब है, कौन सा मस्जिद साथ में बता। हफ्तार को कैटर
संडे इतवार इनकी वो पहले मस्जिद कब होता था? जिसमें हर कोई साथी सेंटर में पहुंच सके, हाँ, सेंटर में ऐसा ऐसी मस्जिद सोचकर के साथी रहे। हाँ बस पहले कैट की मस्जिद और कब शनिवार बोला ना, इतवार संडे वाला बोलो बोलो जो इंशाल्लाह पीर के दिन बताओ पीर मंडे मंडे हाँ पीर के दिन हो और कैट को हो ऐसा। ठीक है इंशाल्लाह कित को और किसी क्या ख्याल है? इंशाल्लाह पीर के दिन अलाकिया मस्जिद में अभी इंशाल्लाह कल भी शुरू होने वाला है पीर के दिन। सोमवार गेस्ट शुरू कल ये जो आप देखो ये जो मशवरा है ना, मशवरा तो एक मस्जिद में ये नहीं फिक्स नहीं होगा, बारी दो चार हफ्ता हो के फिर तो इंशाल्लाह जाएगा। बदल आएगा। अभी हमारा ख्याल इंशाल्लाह आप लोग सब मिल के ये तय करो पीर का दिन हो किटको में हो इंशाल्लाह किटको के मैंने एक दो हफ्ता 3 हफ्ता करके फिर आप लोग अपने हिसाब से अलाकिया में भी तो गेस्ट टाइम भी शुरू बता हो दें रहा है, हमें क्या सब। हाल होगा वो हाँ, हाँ। आगे टाइम से- टाइम भी बता दें मगरिब से ऐसा है अच्छा ये तो हमारा तो सनाया का अक्सर तो मन ऐशा का बाद ही होता है ना। यानी ईशा की नमाज वहाँ पर ऐसा वहाँ पढ़े। ईशा की नमाज ऐसा ऐसा क्या नमाज यानी कल से कल 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 इंशाल्लाह ठीक है इंशाल्लाह हम लोग को भी इंशाल्लाह ये दे दो दावत दे दो, हम लोग भी आएंगे। गाय में काटो हम लोग कर रहे यहाँ से हैं। दो साथी तय कर लें हम सब, जी 2 साथी तय कर लें हम क्या मेरे ख्याल इंशाल्लाह आमीन भाई और आमिर साहब इंशाल्लाह गाय के ही दे दो भाई करवाएंगे। আগামী শুক্রবার এখানে মশলা আছে। 2 ओ साथी भाई ये तो सबको इंशाल्लाह पता है कि अगली जुमा को असर से लेकर अशा तक सारे दोहा का महीने वाली मैंने मशवरा है। तो इंशाल्लाह हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मैंने मोहल्ला से ये तरतीब किया, मैंने असर का नमाज पढ़ के अपना अपना मोहल्ला से अपना जिम्मेदारी से इंशाल्लाह जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह। और इसमें एक छोटा बात ये है, मशवरा जो है ये होने वाला था ये में अबू अमूर में, लेकिन बस बुजुर्ग ने अभी बोला ये 52 में ये वाली बाद वाली मस्जिद में होगा। तो फिर कोई ने बोला भाई इधर जब होगा एकरम शेकरम कुछ नहीं चाहिए, बस असर का टाइम चाय होगा, ये बोल के मनी मशवरा ख़त्म कर दिया। तो लेकिन हमारे दिल में एक बात है, हमारा मोहल्ला में यह है मनी मशवरा है, तो अगर कोई एकरम शेकरम हो जाए ये दिल में बात आया तो फिर हमारा अलमीन भाई से हमको बोलता है हमारा तो अभी 100 इकट्ठा होगा, तो आप आपका बात इधर रखो, अगर वो लोग भी मुनासिब समझेगा तो फिर राय दे दे, नहीं समझा तो तवक्कल जो अल्लाह है। तो अभी क्या करें, अब हमारा सनाई वाला मिल के उसको थोड़ा सा एकरम शेकरम कर दे या अल्लाह करीम। नहीं कर दे इंशाल्लाह। हमने नाजिर भाई से सुन के हम लोग तो कुछ बरकत भी उड़े यार 350। अच्छा भाई और साथी राइट लेफ्ट वाला है। मेरी राय है हमें साहब कि काम की शक्ल अगर अभी जिंदा हो रही है और असर से मगरिब का वक्त दिया है ना, क्या असर से इशा। दाल रोटी भी हो जाए। मेरी राय मुख्तसर में रखें, मुख्तसर मतलब जो चाय की राय दी थी हाँ, वही करके साथी को पहले ही यानी वक्त से पहले छोड़ दे ताकि वो अपने मुकाम पे जाके उनका जो तकाजा पूरा करे। ना वो तो वो लोग अपना हिसाब से करेगा ना, हम हमारा ख्याल मशवरे वालों के ऊपर है, शनि वालों के ऊपर नहीं है ना। जी ना फना से ऊपर नहीं है। हाँ वो मशवरे वालों के नहीं वो लोग ऊपर बताया असर से ऐसा, उससे पहले अगर छोड़ दिया तो अलग बात है। ना ऐसे वो बोला छोड़ना वोड़ना वो नहीं करना। हमारा हमारा जो बात है अभी जो हम बात कर रहा है, घर में मेहमान हम आए। चाहता है भाई जैसा जुमा का दिन हम लोग का मन मशवरा होता है, तो आज तो नहीं होगा, हम लोग उधर जाएंगे, तो हम लोग का भी ये है एकरम है, अगर वो एकरम उधर लेके जाएगा तो फिर भी खा सकता है। इसके लिए हम चाहता है कि कुछ एकरम हो जाए। अभी इसके बारे में आप लोग का क्या है, हो जाए या नहीं हो जाए बस। चाय की फिक्र सही है। अच्छा आमिर साहब मेरा ये है कि उनसे आप फोन पर भी रब्ता करें कि भाई हमारे हम लोग सनिया वालों चाहते की राय ये है थोड़ा कि इकराम इंशाल्लाह साथियों का इकराम होगा सारा मशवरा खत्म होने के बाद। हाँ, वो जो क्या फैसला वो करे बात शूरा पर राजी? वहाँ पे वो पे तय करो ना, अपना कैसे करें हर आदमी एक फरादी अमल थोड़ा। अच्छा चलो मैं वक्त हो गया, दुआ पढ़ते हैं। ठीक है। सुभान अल्लाह बिहम्दी सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी तो राय जैसा अभी मेहमान बोले। आ रहा है, थोड़ा कौन पड़ेगा ना। नहीं फैसल से भी सुनाना था ना, भाई चले गए तो इसका मतलब खत्म। नहीं वो थोड़ा खड़ा हो, कमर सीधा करने के लिए। उसका नाइट ड्यूटी। ठीक है। अभी आप जो बात बता वही हम ये करेगा, उससे मैंने
मंगल को तो मशवरा होगा ना, बात करके फिर बात करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है भाई, बाकी आप इंशाल्लाह भाई शादी के अकरम का बंदोबस्त है, आसिल में इंशाल्लाह थोड़ा माथिर में जाए। चलो इंशाल्लाह। सुबह अल्लाह हमदी सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, उनका